بلیٹن کے آغاز میں کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدید لہر شروع ہو گئی ہے اور پاکستان کے شمالی علاقوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کئی مقامات پر برف باری ہوئی ہے۔ شمال مشرقی اور مغربی بلوچستان میں برف باری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ چمن میں برف پڑنے کے حسین مناظر نظر آئے، گھر درخت اور گاڑیاں برف سے ڈھک گئے۔ برف سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ سوات، لوور دیر، شنگلہ، شگران، ناران، محمد اورگزئی کے بالائی علاقوں نتھیا گلی، ایوبیہ، ڈونگا گلی، چھانگلہ گلی میں بھی برف باری جاری ہے۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی بری طرح سے متاثر ہو گیا ہے۔ چمن میں 35 سال بعد شدید برفباری سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوجک ٹاپ، شیلا باغ، خواجہ عمران، کوہ سلیمان، قلعہ عبداللہ، زیارت، پشین، مسلم باغ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی اور دیگر علاقوں میں برفباری کے بعد خون جما دینے والی سردی ہے۔ برفباری کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک شدید متاثر ہے۔ NHA، PDMA اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مشترکہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ خضدار، لزبیلہ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں شانگلہ، لوور دیر، مومن، کالام، اورگزئی، چترال میں بارش اور برفباری سے موسم شدید سرد ہو گیا ہے۔ چترال میں برفباری سے متعدد رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند ہیں۔ سیاحتی مقام شوگران میں 1.5 انچ، ناران میں 6 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ سیاح برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے شوگران پہنچ گئے ہیں۔ اپر گلیات کے مختلف مقامات ایوبیہ، ڈونگا گلی، چھانگلہ گلی میں برفباری، جبکہ ایبٹ آباد شہر میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور دیامر میں شدید برفباری کے باعث نظام زندگی مفلوج ہے۔ ہنزا اور نگر کے مختلف علاقوں میں برفباری جاری ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقے چیپورسن میں بھی برفباری ہو رہی ہے، جس سے خیموں میں مقیم متاثرین کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹھی، لیپا ویلی، وادی کھلانہ، گنگا چوٹی، اڑنکیل، گریس، سرگن ویلی سمیت بالائی علاقوں میں برفباری جاری ہے۔ ادھر سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ہلکی اور تیز بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، وہاں کئی افراد پھنسے ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ وادی تیرہ میں ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارروائیوں میں دشواری کا سامنا ہے، بھاری مشینری کے ذریعے سڑک صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خوراک اور دیگر امدادی سامان پر مشتمل ٹرک تیرہ روانہ کر دیے گئے ہیں۔ آج ڈیووس میں غزہ امن بورڈ کے معاہدے پر دستخط کے پاکستان باضابطہ طور پر غزہ امن بورڈ کا رکن بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل آصف منیر بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ صدر ٹرمپ نے خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل کے بارے میں بات کی۔ وزیر اعظم نے انہیں فیلڈ مارشل کی نشست کے بارے میں آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے مسکراہٹ کے ساتھ فیلڈ مارشل آصف منیر کا خیر مقدم کیا۔ اس سے پہلے تقریب سے خطاب میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ بہت سے ملک غزہ امن بورڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے 8 ماہ کے دوران 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ جنگیں رکوانے کے بعد بہت سے ملکوں کے سربراہ ان کے دوست بن گئے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا۔ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ان سے کہا کہ جنگ رکوا کر 1 کروڑ سے زائد جانیں بچائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے، امریکہ بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ غزہ امن بورڈ میں شامل نمایاں ملکوں میں سعودی عرب، ترکی، قطر، ہنگری، انڈونیشیا شامل ہیں۔ برطانیہ نے بورڈ میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ خارجہ سیکرٹری یویٹ کوپر کے مطابق یہ فیصلہ تقریب میں روسی صدر پوتن کی ممکنہ شرکت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقاتیں کی۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ امن بورڈ لانچ کرنے کے بعد
ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर ने आलमी इक़्तिसादी फोरम में गजा की तामीर नौ का मंसूबा पेश कर दिया। कुशनर ने कहा कि गजा की 2 साला जंग में 90,000 टन गोला बारूद के इस्तेमाल से हज़ारों जानें गईं और 60 मिलियन टन से ज़्यादा मलबे का ढेर बना। जंगबंदी के दूसरे मरहले में गजा की तामीर नौ की जाएगी। कुशनर ने कहा कि जैसा कि सदर ट्रंप कह चुके हैं कि ये सब गजा के लोगों के लिए होगा। कुशनर ने बताया कि गजा मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम होगा। 3 साल में 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश वाले शहर बनाएंगे। तामीर नौ के अमल का आगाज़ रफा से होगा, जहां उनके मजदूरों की रिहाइश का इंतजाम होगा। वो गजा की तामीर नौ का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गजा में मलबा हटाने का काम पहले ही शुरू हो गया है। इसके बाद नया गजा होगा, नई उम्मीद के साथ, जहां बहुत सी सनतें होंगी। आयरलैंड ने गजा आर्म्ड बोर्ड पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। आयरलैंड के नायब वज़ीर आज़म साइमन हैरिस का कहना है कि हम आर्म्ड बोर्ड में संगीन ख़तरात की निशानियां देख रहे हैं। आज की दस्तखती तकरीब में जो कुछ देखा वो इब्तदाई आर्म्ड बोर्ड मंसूबे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस मंसूबे की तौसीक़ की उसमें गजा आर्म्ड मंसूबे की निगरानी के लिए बोर्ड बनना था। अब की तजावीज़ में गजा का जिक्र भी नहीं। हमें आर्म्ड बोर्ड में शामिल होने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिवोर्स से वापसी पर पाकिस्तान आमद से पहले बरतानिया पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा अब से कुछ देर पहले लॉटन एयरपोर्ट पर उतरा है। वज़ीर आज़म ने डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में गजा आर्म्ड बोर्ड के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आग कैसे लगी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने इमारत को खतरनाक करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी है। काशिफ मुश्ताक रिपोर्ट करेंगे। सानह गुल प्लाजा को हुए 6 रोज गुजर गए। एक तरफ मुतासरा इमारत का मलबा उठाने और सर्चिंग का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानब तहकीकाती टीम ने भी एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। मुबैना तौर पे दुकान में मौजूद बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, जिससे इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और फैलते हुए आग बिजली के तारों तक पहुँच गयी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। हादसे के वक्त प्लाजा में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थीं। इमारत के छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग से इमारत में मौजूद सीसीटीवी सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का बताना है कि लापता अफराद की फहरिस्त में अब तक 77 अफराद के नाम हमारे पास मौजूद हैं। अभी तक जो हमारी कार्रवाई हुई है रिकवरी एंड सर्च की, उसमें तकरीबन अभी तक 67 डेड बॉडीज़ अभी आज जो हमने रिकवर की हैं वो 11 के करीब की हैं। टोटल जो है 67 के करीब डेड बॉडीज हम शिफ्ट कर चुके हैं, जो डीएनए टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। जहां रेस्क्यू का अमल जारी है, वहीं एम ए जिना रोड पर बड़ी तादाद में साने में जाबाग अफराद के लवाहिकीन ने भी एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मुश्तरका टेक्निकल कमेटी ने सदर में वाक़े गुल प्लाजा का तफसीली मुआयना मुकम्मल कर लिया। कमेटी ने गुल प्लाजा को इंतहाई महदूश करार देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की तकमील के बाद इमारत को मुनहदम करने की सिफारिश कर दी है। कैमरामैन नासिर अली, मोहम्मद साजिद और साथी रिपोर्टर किरण खान, राहिल सलमान और सुलेमान सादत खान के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। सानहा गुल प्लाजा में जांबाग अफराद की याद में आर्ट्स कौंसिल कराची में शमें रोशन की गई। दुआया तकरीब भी मुनाकिद की गई। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राबिया। सानहा गुल प्लाजा, जिसने इसके बारे में सुना हर किसी को गूज़बम्स हुए। ये खबर ही ऐसी थी, जिसने इसका सुना उसकी आंख में आंसू आए या उसने सोचा कि वहाँ पे हम भी हो सकते थे। यहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बात की। यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल कराची ने आज यहाँ पे विजिल का इनेकाद किया, जिसमें शमें रोशन की उनकी याद में जो सानहा गुल प्लाजा में शहीद हुए हैं। उसमें बच्चे शामिल थे, औरतें शामिल थी, पूरी फैमिली शामिल थी। हर आँख अश्बार है, सबके सीने भरे हुए हैं। एक बड़ा वाक़या हुआ है और ये नेशनल ट्रेजेडी है। जितनी लिमिटेशंस हैं फायर ब्रिगेड के हवाले से, पथारों के हवाले से, जो रास्ते बंद थे उसके हवाले से, तो वो सब पे
अमल होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे के लिए ये चीज़ चाहिए कि हमारी जो पुरानी इमारतें हैं या आगे जो हमारी बन रही हैं इमारतें हैं, हम उसमें फायर ब्रिगेड का कुछ ऐसा राह अमल हम उसमें रखें कि अल्लाह ना करे अगर इनकेस वहाँ आग लगती है तो हम फ़ौरन उस पर काबू पा लें, ना कि ये कि वो बढ़ जाए। कि खुदा का वास्ता आने वाले वक्त में कुछ कर लें, ये हाल दोबारा ना हो। इतना बड़ा शहर है कराची और कितने हैं फायर ब्रिगेड, इनमें तमाम चीज़ें मुहैया करें इनको। यहाँ पे लोगों ने बताया कि अब तनकीद करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे हुक्मरान को चाहिए कि हर इमारत की प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हो, देखा जाए कि उसमें SOPs फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फायर एग्जिट्स होने चाहिए, फायर ब्रिगेड का इंतज़ाम को बढ़ाना चाहिए, हर टाउन में एक स्टेशन मौजूद होना चाहिए ताकि ऐसे हादसात सानहे में तब्दील ना हो। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची। हुकूमत और स्टेट बैंक की जानिब से सख्त माली और माशी नज़्म व ज़ब्त अपनाने के मुस्बत असरात दिखाई देने लगे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद का सिंगल डिजिट में आना पाकिस्तानी मैशत के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्टेट बैंक की ताज़ा टेबल नीलामी में पाकिस्तानी रेट 10% से भी नीचे आ गया है। माशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में कमी अलामत है कि मकामी सरमायाकार और मालियाती इदारे मुस्तकबिल को ज़्यादा महफूज और पुरुमीद समझ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई शोबे में 79 कंपनियों के साथ $4.5 अरब की सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों को माहिरीन ने अहम संग मील करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के ज़राई शोबे में आलमी शराकतदारों का नया दौर शुरू हो चुका है। SIFC की फ़ाल सिफारती और माशी हिकमत अमली के नतीजे में पाकिस्तान अब आलमी स्ट्रेटजिक ज़राई और इक़्तिसादी ताउन में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में माशी और ग़ज़ाई बहरान ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। अफगान जरीदे ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से लिखा है कि अफगानिस्तान में 1,70,00,000 अफराद ग़ज़ाई बहरान का शिकार हैं। रवां साल मज़ीद 20 लाख बच्चों को ग़ज़ाई क़िल्लत का ख़तरा है। महाजरीन की वापसी से गुर्बत और भूख में इजाफा देखा जा रहा है। तालिबान की पॉलिसियों से मईशत तबाह और बेरोज़गारी उरूज पर पहुँचती नज़र आ रही है। खबर देंगे आपको कराची से, जहां के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले के नतीजे में 6 मुबैना डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू अफगान शहरी हैं जो कि डकैती के लिए एक घर में दाखिल हुए थे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से मजीद जानेंगे। राहिल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, कराची का इलाका है पाक कॉलोनी, जहाँ पर हसरत मुआनी कॉलोनी के एरिया में पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि कुछ डाकुओं की मौजूदगी की इतला पर वहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद फिर डाकुओं ने भी उन पर फायरिंग कर दी और एक घर में दाखिल हो गए। पुलिस ने मजीद इजाफी नफरी तलब की और उसके बाद फिर उस घर को कॉर्डर ऑफ कर लिया गया। फायरिंग का तबादला कुछ देर तक जारी रहा। इस दौरान एक पुलिस एहलकार बाजू पर गोली लगने से जख्मी भी हुआ। SSP किमाड़ी अमजद शेख ये बताते हैं कि फायरिंग के तबादले में 6 मुल्जिमान मारे गए और उन मुल्जिमान को पुलिस ने उस वक्त जब शनाख्त किया तो वो घरों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस थे, जबकि इसके साथ साथ वो खवातीन को ज़्यादती का निशाना भी बनाया करते थे। मुल्जिमान के पास से असलहा और दीगर चीजें भी बरामद कर ली गई, जबकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। इससे पहले भी ये मुल्जिमान इस इलाके में किसी किस्म की वारदातें कर चुके थे और आज भी ये किसी वारदात के वहाँ पर पहुंचे थे, जिस पर पुलिस ने उस मकान का घेराव करने के बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए राहिल। ज़िला खैबर की वादी तीरा में बारिश और बर्फबारी के बाद 100 के करीब गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काजी फजलुल्लाह। काजी फजलुल्लाह, बताइएगा कितने अफराद हैं रास्ते में फंसे हुए हैं, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, ज़िला खैबर की इलाका वादी तीरा में मिलिट्री ऑपरेशन की खातिर जो नकल मकानी का सिलसिला 7 जनवरी शुरू है तो आज तक जारी है। गुज़िश्ता सुबह जो सैकड़ों खानदान लेके गाड़ियां रजिस्ट्रेशन पॉइंट पर पहुंच गए तो बदकिस्मती से उन पर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और गुज़िश्ता शाम से शदीद बर्फबारी शुरू हो गई। तो इस दौरान जो है सैकड़ों गाड़ियों में मैसूर जो है सैकड़ों खानदान, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन है, वो फंस गई है। तो लिहाजा सूबाई हुकूमत की हिदायत पर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पेशावर से रेस्क्यू टीमें तलब कर ली गई, मर्दान से रेस्क्यू टीमें तलब कर ली गई।
साथ साथ पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब जो है 100-150 से ज्यादा मुतासर अफराद जो है वो रेस्क्यू किया गया है और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 2 तरीकों से जारी है। एक जो रोड पे बर्फ पड़ा है उसको साफ किया जा रहा है, दूसरी जानिब जो मुतासर अफराद फंसी हुई है उसको निकाल के महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन्हें गर्म बिस्तरे मुहैया करते हैं और साथ साथ खुराक की सहूलियत फराम करते हैं। दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया ने जो है ऐलान कर दिया है कि जब तक मौसम नॉर्मल ना हो और बर्फबारी रुकी ना हो तब तक जो है क्लियरेंस और नकल मकानी का सिलसिला जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। कराची में तेज़ हवाओं के साथ मौसम सरमा की दूसरी बारिश हुई, जिसके बाद सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। ये बारिशें मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात कराची का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री तक रहने का इम्कान है। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस इतवार तक सर्दी की लहर जारी रहने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के शुमाल बालाई इलाके फिर से बर्फीली तूफान की जद में आ गए हैं। ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियां बर्फीली तूफान में फंसी हुई हैं। तफसीलात जानते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान अचकज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त बलूचिस्तान के 2 अहम शाहराह खासकर M50 जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह कान में तरजई, खानुजई, उशाब और मुस्लिम बाग के मकाम पर जो सड़क है वो जम चुकी है। वहाँ पर कई मकामात पर गाड़ियाँ फंसी हुई है, जबकि दूसरी जानब जो मुख्तलिफ शहरों से ज़ियारत सयाहत के लिए जाने वाले लोग थे वो 3 से 4 मकामात पर उनकी गाड़ियाँ फंसी हुई है। इस वक्त तक तकरीबन 27 गाड़ियाँ जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई है। बर्फीली तूफान के जद में वहाँ पर तेज हवा चल रही है, बर्फबारी भी इस वक्त जारी है। दर्जा उस मकाम पर इस वक्त -18 तक गिर चुका है। वहाँ पर बच्चे भी है, खवातीन भी है, बुजुर्ग भी है उसमें, और दोनों शाहराह जो इस वक्त वहाँ पर मकामी इंतजाम पहुँचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ पर फिसलन के बायस सरकारी गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच पा रही है। तो इस वक्त इन लोगों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि कोयटा चमन कराची M25 शाहरा कोजकटाब के मकाम पर भी बंद है। मुख्तलिफ हादसा भी रूनुमा हुए, खासकर M50 शाहरा पर 9 मकामात पर हादसा में इस वक्त 21 अफराद जख्मी है, जबकि कोजकटाब के मकाम पर गाड़ियों की फिसलन के बाद टकराव के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जांबाक और 7 अफराद जख्मी हुए हैं। इस वक्त PDMA और NHA के जो काम है वो नमकपाची अमले के हमरा मुतासरा मकामात पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। पंजाब के दूसरे इलाकों की तरह लाहौर में भी मौसम सरमा की पहली बारिश ने रंग जमा दिए हैं। कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से फ़ज़ा साफ़ और दरख्त और पौधे धुल चुके हैं। गर्दो गुबार और स्मॉग कम होने से शहरियों ने सुख का सांस लिया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक लाहौर में भी बादल छा गए और तेज़ हवाओं ने सर्दी की शिदत में इजाफा कर दिया। शाम के बाद कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से फ़ज़ा धुल गई। धूल से अटे दरख्त भी साफ़ हो गए। फ़ज़ा में गर्दो गुबार कम होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश के बाद फिसलन से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। तबी माहिरीन का कहना है कि बारिश के बाद गले और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत भी कम हो जाएंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जुम्मे की सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा।